good evening, everyone. How are you all? I hope you all are doing good. So, let me introduce myself once again. So, my name is Pallavi, and I welcome you to my class. So, what we are going to learn in today's class. In today's class, we are going to learn about the nutrition in plants. So, this is from class 7, and yes, we have covered a lot of things in our previous class related to this chapter. We have covered about the photosynthesis, then we have covered about the modes of nutrition and all, okay, in our previous class. Okay, so in this class we are going to learn more about the nutrition in the plant. Okay, so let us start our today's topic. So please everyone do prepare your notes. Okay, so let us start. So in this class, we are going to learn about the synthesis of plant food other than the simple carbohydrates. Okay. Then we will learn about some other type of other mode of nutrition also. Okay. So let us start with the synthesis of plant foods other than simple carbohydrates. Okay. So yes, हम लोग के दिमाग में क्या है कि क्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स बनाते हैं, या फिर कुछ और भी फूड्स हैं जो प्लांट्स बनाते हैं. ओके, so yes, the plants prepare carbohydrate, but after the time that and after certain condition that carbohydrates convert into the different components. Okay, so we are going to discuss about that. So let us start from the starch as food. So first one is starch as food. So yes, first simple carbohydrate are prepared by the plants as a food. ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर होता है जिसको ग्लूकोज बोलते हैं. ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम्स what happened that simple carbohydrates convert into the complex carbohydrate. ठीक है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है. वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है? वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है? स्टार्च. ओके, so the complex carbohydrate is starch, and that starch is stored in different part of plants like roots, stem, fruits, seeds, leaf. So different part of plant that complex carbohydrate stored like a starch stored. Okay, then the another thing which are also prepared by the plant, and that is what? Fats as food. Okay, fats as food. So fat कैसे food की तरह prepared होता है? कार्बोहाइड्रेट, कुछ कार्बोहाइड्रेट दैट मीन्स ग्लूकोज क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है वाइल के फॉर्म में. ओके okay? और वो किस में कन्वर्ट वो किस में कलेक्ट होता है? वो किस में स्टोर होता है? वो सीड्स में स्टोर होता है. तो इसके लिए हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं? जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं लाइक कि मस्टर्ड, सनफ्लावर. इनके सीड्स से क्या बनता है? ऑयल. कैसे ऑयल बनता है? क्योंकि वो फैट कलेक्ट होता है उनके सीड्स में. ठीक है, उनके सीड्स से ऑयल बनता है. ओके, so here I'm writing seeds. Okay, then the fourth thing that is the protein as food. Protein as food. So how protein as food? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में कैसे कन्वर्ट होता है? तो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है, जो लेगुमिनस प्लांट्स के रूट में राइजोबियम होता है, उनको क्या कन्वर्ट किस में कन्वर्ट कर देता है? उनको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट में. वो नाइट्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट से कंबाइन होते हैं और उसके बाद वो क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड बनाते हैं. ठीक है, अमीनो एसिड बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटीन में. ओके, तो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है. लाइक कि हमें प्रोटीन्स कहाँ से? बहुत सारे. वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ पल्सेस लाइक gram, peas, beans. So in those things we can get proteins. Okay, the next one is the vitamin as food. So yes, vitamins are also we get vitamins from the fruits, vegetables. Okay, so that is also prepared by the plant. Okay, so now we are going to learn about the other mode of nutrition. Okay, so what is the other mode of nutrition in plant? So do you have any idea? I know you have some idea about the parasites and saprophytes.
Okay, so we are going to learn about that. So some other modes of nutrition in plant is parasitic and saprophytic. So what is that? What is parasites? Okay, so basically parasites who just get their food or nutrients from the other plants. Okay, other plants, that are the parasites. Okay, so a plant or animal which lives on the other plant or animal or depend on the other plants or animal for their food or nutrients are the parasites. So in case of plants, the parasitic plants lives on the host plant. Which are the host plant कौन सा है जिससे कि वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है। पैरासाइट्स अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो उस प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, होस्ट प्लांट्स बोलते हैं। ओके, सो बेसिकली क्या होता है, पैरासाइट्स प्लांट हैविंग सर्टेन स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स, ओके, एंड दैट रूट्स आर नोन एज सकिंग रूट्स। which type of root is that? Sucking रूट्स। ये क्या करता है, ये रूट अब्सॉर्ब करता है होस्ट प्लांट से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करके, और ये सप्लाई करता है प्लांट्स को जिससे वो सर्वाइव करते हैं। ओके, सो दैट इज पैरासाइट। सो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कैस्कुटा। कैस्कुटा एवरीवन हैव सीन दैट प्लांट, वी हैव सीन येलो कलर का ब्रांच टाइप का होता है। दैट मीन्स वो क्या होता है कि किसी प्लांट ट्री के साथ वो लिपटा हुआ रहता है, ठीक है, उसको स्क्रोल किया हुआ रहता है। वो क्या करता है, अपना न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करता है उस ट्री से, उस प्लांट से। ओके, देन वी हैव मिसलटो, wheat rust, okay, wheat rust which is found in wheat plant, corn smut. So these are some example of the parasitic nutrients. Okay, now we have saprophytes. So what is saprophytes? So yes, the organism, the plants, which depends on the dead and decaying organism for their food and nutrients, are the saprophytes. Okay, so we can take the example of mushroom, bread molds and yeast. Bread molds, मशरूम और ये इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ये क्या होते हैं, ये एक फंजाई होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो डेड और डिकेइंग चीजें हैं उनके ऊपर ग्रो करते हैं। जैसे कि मशरूम को हमने देखा है, मशरूम आपने देखा होगा, इस टाइप का शेप होता है मशरूम का, और ये मशरूम अम्ब्रेला के शेप का होता है, जो कि कहीं भी कोई वुड हो खराब, ड्राइड वुड हो जिसके वो क्या होता है उस पे भी उगाते हैं। जितनी भी डिकेइंग चीजें हैं वहां से वो अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। बट क्वेश्चन है कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं। ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं, किस पे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे। और उस डाइजेस्टिव जूस उससे क्या होता है कि ये चीजें हैं जो न्यूट्रिएंट्स है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसको एब्सॉर्ब करते हैं उससे, ठीक है। So mushroom, bread molds we have seen when we will keep the bread or in open area, in a moist area. What happen after some time? हम लोग क्या देखते हैं, कुछ स्मॉल स्मॉल से ब्लैक ब्लैक कलर, ब्राउन ब्राउन कलर के कैसे स्पॉन्ज टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है ब्रेड के ऊपर। तो वो क्या है, ब्रेड मोल्ड्स है। वो भी क्या है, वो फंजाई है, वो ब्रेड पे ग्रो करता है, ठीक है। यीस्ट, यीस्ट फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है, यीस्ट वो भी क्या है, फंजाई है। ओके, तो ये सारे क्या है, सैप्रोफाइट्स हैं। ये कहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म से। ओके, सो दीज आर द सैप्रोफाइट्स। Now we have a question. So all these are fungi. So we have a question. Is all fungi are harmful or useful? सारे फंजाई क्या हार्मफुल है या यूजफुल है? जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया मशरूम का, ब्रेड मोल्ड का, यीस्ट का, ये सारे साउंड कहते हैं कि ये क्या है, यूजफुल है। ओके, तो हम कुछ हार्मफुल फंगाई भी डिस्कस करेंगे, बट पहले हम इनका यूज देखेंगे, ठीक है। तो यूजफुल फंजाई, मशरूम, मशरूम वेजिटेबल्स की तरह यूज करते हैं, दैट मीन्स फूड में यूज करते हैं, हम मशरूम को हम खाते हैं। ओके, देन yeast, yeast are used in fermentation,
फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है ईस्ट को। तो ये क्या हो गए, यूजफुल हो गए। देन वी हैव harmful fungi. So fungus infection happen in our fingers, toes. क्या होता है, फंगस इन्फेक्शन होता है, वो क्या है, वो हार्मफुल होता है। ओके, okay, so that and one most important thing, the uses of fungus is the fungus are also used in preparation of medicine। ठीक है, एंटीबायोटिक बनाया जाता है इससे। आप सबने सुना होगा किसका, पेनिसिलिन का नाम। ये क्या है, ये एंटीबायोटिक है। ये किससे बनता है, फंगस से बनता है। तो सॉरी, इट इज नॉट हार्मफुल, लेट मी क्लियर दैट, इट इज ह्यूज। So penicillin are used as antibiotic। So here I am writing, okay, and yes, fungus cause skin diseases, okay, so that is the fungus infections in our skin, okay, so that is the harmful effect of the fungus, that is fungi, okay। So let us learn about some other modes of nutrients, न्यूट्रिशन, एंड व्हाट इज दैट, क्या वो अदर मोड्स है, तो वो बहुत ही पिक्यूलियर टाइप का मोड है न्यूट्रिशन का। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट मीन्स जो प्लांट होते हैं, वो कम पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, वो कंप्लीट हेट्रोट्रॉप्स नहीं होते। दैट मीन्स क्या, सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे इंसेक्टिवोर्स प्लांट का। ओके, इंसेक्टिवोर्स प्लांट क्या होते हैं, इंसेक्टिवोर्स प्लांट, so basically the plants which depends on the which are autotrophs as well as heterotrophs, okay, so basically they get their foods from the soil and atmosphere as well as insects also, okay, so those are the insectivores plant। क्या करते हैं, वो अपना फूड सॉइल और एटमोस्फेयर से भी प्रिपेयर करते हैं, और उनमें कुछ फूड डिफिशियंसी होती है, न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को भी खाते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स को भी खाते हैं, तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है, इंसेक्टिवोर्स प्लांट बोला जाता है। ठीक है, सो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ पिचर प्लांट, सनड्यू, विनस फ्लाई ट्रैप, देन ब्लैडर वॉट। सो these are the example of the insectivores। So we are going to take one example here, that is peacher plant। पीचर प्लांट का शेप कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है। ओके, इस टाइप का शेप होता है, और उसमें क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, लीफ, दैट मीन्स एपेक्स जो होता है लीफ का, लीफ ब्लेड होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इस टाइप का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में। ये क्या होता है, लीफ ब्लेड होता है। ओके, सो लीफ ब्लेड, और वी कैन से लेमिना modified, sorry, लेमिना modified in a ट्यूबुलर फॉर्म। वो ट्यूबुलर फॉर्म में लेमिना क्या हो जाता है, ट्यूबुलर फॉर्म में मॉडिफाई होता है। ठीक है, और इसके अंदर में ह्योर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ह्योर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके अंदर में, और एपिक्स जो लीफ का होता है, वो मॉडिफाइड हो जाता है कैप लाइक स्ट्रक्चर, दैट मींस दैट इज यूजुअली ओपन एंड क्लोज। ये क्या होता है, हमेशा ओपन और क्लोज होता है। तो ये क्या है, एपेक्स है लीफ का। ओके, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पिक्चर। ठीक है, और ये कैप में, एपेक्स कैप में कन्वर्ट करता है। इसमें से एक स्पेशल स्मेल, दैट मींस बहुत अट्रैक्टिव सा स्मेल निकलता है, जिससे इंसेक्ट्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं इसकी साइड, अट्रैक्ट होते हैं, आके बैठते हैं, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट इसके अंदर इन कर जाते हैं, इन करते हैं, और इसमें ह्यो लाइक स्ट्रक्चर है, इंसेक्ट क्या होते हैं, उसमें ट्रैप हो जाते हैं। ऐसा ट्रैप होता है कि वो बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है, जैसे इंसेक्ट अंदर अंदर आते हैं, ये जो एपेक्स है, दैट मींस लिड है, वो क्लोज हो जाता है, लिड क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट अंदर फंस जाते हैं। फिर इसके वॉल से डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है। ये डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, जो नाइट्रोजन होता है इन इंसेक्ट्स में, उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है,
तो इन्हें नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? ये नाइट्रोजन डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है, इंसेक्ट से नाइट्रोजन लेते हैं। ओके, सो दीज आर इंसेक्टिवोर्स प्लांट. Now we have some symbiotic plant. Symbiotic, that means mutual sharing. Okay, mutual sharing. So basically, which type of plants are symbiotic plants? So we have seen a lot of things. We have many examples. First example is lichens. Lichens, ठीक है, lichens क्या होता है? हमने देखा है पॉन्ड्स के ऊपर, रिवर के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर का वो algae होता है, ठीक है। तो लाइकेंस क्या है? अल्गी और फंगाई का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, अल्गी प्लस फंगाई। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये दोनों म्यूचुअल शेयर करते हैं, दैट मीन्स म्यूचुअली एक दूसरे का हेल्प करते हैं। कैसे एक दूसरे का हेल्प करते हैं? हमने लास्ट क्लास में क्या लर्न किया था? अल्गी जो फोटोसिंथेसिस करता है, दैट मीन्स अल्गी में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। और फंजाई क्या करता है? वो क्या एब्जॉर्ब करता है? वाटर एंड मिनरल्स from the soil or water, and that water and mineral supply to the algae. algae को supply करता है उस water और mineral को food preparation के लिए, ठीक है। जो algae food prepare करता है वो food fungi use करता है, ठीक है, उससे nutrients लेता है। तो ये क्या है? lichens. Lichens are the example of symbiotic relationship, that means mutual relationship, that means they help each other, okay, to get the nutrition. Then rhizobium. Okay, rhizobium bacteria which is present in the nodules of the leguminous plant. Leguminous plant like gram, pea, we can take the example of beans. So these are the leguminous plant. Okay, so what happened in that plant? So that bacteria, rhizobium bacteria, convert atmospheric nitrogen into the nitrate. ठीक है, सिंपल नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जिसको कि प्लांट, वो नाइट्रेट क्या होता है? प्लांट के सॉइल में मिक्स हो जाता है, जिसे रूट क्या करते हैं? अब्सॉर्ब करके प्लांट को सप्लाई करते हैं। तो प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? ये राइजोबियम बैक्टीरिया से। वो कहाँ पे होते हैं? लेगुमिनस प्लांट के रूट के नोड्यूल्स में होते हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ओके, so these are the symbiotic plants. Okay, these are some example of symbiotic plant. Okay, so now we are going to learn some new thing here. Okay, so here we have a question in our mind, and that is very nice question. How nutrients are replenished in the soil? कैसे? क्योंकि क्या होता है, जब एक ही टाइप का क्रॉप ग्रो किया जाए फील्ड में, क्या होता है? फील्ड का बेसिक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है प्लांट्स का? वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लास, दैट इज नाइट्रोजन, phosphorus, okay, phosphorus and potassium. So these are the basic nutrients of the plant. ठीक है, ये कहाँ से प्लांट्स को मिलता है? ये सॉइल से मिलता है। बट जब एक ही तरह के प्लांट बार बार ग्रो किया जाए उस सॉइल में, क्या होगा? उसका इस इनका क्वांटिटी कम होने लगता है, धीरे 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 डिक्रीज होने लगता है। जब डिक्रीज होने लगेगा, दैट मीन्स प्लांट जो ग्रो करेंगे वो हेल्दी नहीं होंगे, ठीक है, दैट मीन्स उनमें डिफिशियंसी आ जाएगी। ओके, इन चीजों की डिफिशियंसी आ जाएगी। तो वो वापस से कैसे मैनेज किया जाता है? कैसे वो वापस से सॉइल में लाया जाता है? So we are going to learn about that. Okay, so there are two way by which the nutrients can be added into the soil, and many more way, but we are going to discuss only two way here. Okay, so the first one is by adding fertilizers and manures. फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स को ऐड करके, तो कुछ फर्टिलाइजर्स का हम एग्जांपल लेंगे, लाइक कि एनपीके, एनपीके और यूरिया, ठीक है। ये एग्जांपल है कुछ फर्टिलाइजर्स के। उनको क्या किया जाता है? उनको फील्ड में ऐड किया जाता है, सॉइल में क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है, ठीक है, ताकि उनका जो न्यूट्रिएंट्स है वो मेंटेन रहे, सॉइल का न्यूट्रिएंट्स मेंटेन रहे, ठीक है। तो उसको कैसे, एनपीके से क्या मिलता है? एनपीके जो फर्टिलाइजर है उससे नाइट्रोजन, फास्फोरस
एंड पोटासियम मिलता है। N स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस एंड K फॉर पोटासियम। तो ये सारी चीजें किससे मिलती है? एनपीके से मिलती है, ठीक है। देन वी हैव यूरिया। यूरिया, सो यूरिया क्या प्रोवाइड करवाता है? यूरिया जो है वो प्रोवाइड करवाता है ओनली नाइट्रोजन। तो इन सारे नाइट्रोजन डिफिशियंसी और फिर कैल्शियम, सॉरी, पोटासियम फास्फोरस की डिफिशियंसी को खत्म करने के लिए सॉइल से क्या किया जाता है? फर्टिलाइजर या मैन्योर यूज किया जाता है, ठीक है। देन द सेकेंड वे टू रिप्लेनिश the nutrients in the soil, and that is the nitrogen can be replenished by the growing leguminous plant। क्या किया जाता है? जब लेग्यूमिनस प्लांट को उस फील्ड में ग्रो किया जाता है तो क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, दैट मीन्स राइजोबियम होता है लेगुमिनस प्लांट के रूट में। ओके, तो ये राइजोबियम क्या करता है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। वो किस फॉर्म में होता है? गैसियस फॉर्म में, जिसको प्लांट नहीं ले पाते, ठीक है। गैसियस फॉर्म जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसे प्लांट डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो राइजोबियम क्या करता है? उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है? कन्वर्ट करता है किसमें? नाइट्रेट्स में। दैट इज, ये कंपाउंड है नाइट्रेट्स में, एक कंपाउंड दैट इज नाइट्रेट्स में, विच इज इसमें कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। नाइट्रेट्स क्या होता है? सॉइल में मिक्स हो जाता है, एब्जॉर्ब, सॉइल क्या करता है? उस नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जिसकी जब लिग्यूमिनस प्लांट को फॉर्म को ग्रो किया जाता है फील्ड में, फिर क्या होता है? जो ये बैक्टीरिया है उसमें सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करता है, दैट मीन्स कि नाइट्रोजन की क्वांटिटी इंक्रीज होती है और नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स ऐड होता है सॉइल में। ओके, so this is all for today. This is all about the nutrition in plants. So that chapter is finished now. ये complete हो चुका है chapter. So everyone please go through that. Okay, and if you face any problem, so you can ask, you adding a comment. Okay, so you can ask that problem. So this is all for today. I hope you have enjoyed the session. So bye everyone. Take care. Keep learning. Keep smiling. Okay. Bye.